دیا تاکہ میں آپ سب کے ساتھ ایک بار پھر ملاقات کر سکوں. یہ تقریباً میرے خیال میں 2-2.5 مہینے کے بعد ملاقات ہے اور میں واقعی میں خوشی سے بھرا ہوا ہوں کہ خدا نے دوبارہ مجھے موقع دیا آپ سب کے ساتھ رفاقت کرنے کا. اور یہ خدا کا فضل ہے کہ میں نے آپ سب کو سلامتی سے پایا اور خدا کا شکر ہے کہ خدا نے ہم سب کو سلامتی بخشی اور یہ رفاقت دوبارہ سے خدا بحال کرنا چاہتا ہے. اور یقیناً میں امید کرتا ہوں کہ جب یہ لاک ڈاؤن پورے طور سے اوپن ہوگا تو خدا بہت سے نئے دروازے ہم سب کے لیے کھولے گا اور جو پہلے دروازے بند ہو چکے تھے کیونکہ خدا نے ہمیں ایک وقت دیا ہے تاکہ ہم اس وقت میں اپنے آپ کو ریسٹور کر سکیں, ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ کلام کے لیے تیار کر سکیں, خدا کے لیے تیار کر سکیں. تو ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور ایک چھوٹی سی دعا کریں گے تاکہ ہم اپنے آپ کو خدا کے سپرد کریں. قادر مطلق خدا تیرا شکر تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں دوبارہ سے خدا ملایا اور خدا یہ رفاقت کرنے کا موقع دیا تاکہ ہم تیرے حضور میں مل کر خدا تیرے نام کو جلال دے سکیں. تیرا شکر ہو اے خدا اپنے آپ کو اور جتنے بھی سننے والے ہیں اور اس گھر میں موجود ہیں سب کو خدا میں تیرے بیٹے کے لہو میں چھپاتا ہوں اور خدا ہماری سوچوں خیالوں پر صرف تیرا قبضہ ہو اے خدا تاکہ جو کچھ تیرے کلام میں سے بیان کیا جائے خداوند وہ ہمارے دلوں میں ہماری زندگیوں میں اثر رکھے, حل لائے اور ہم اے خدا تیرے جلال کے لیے ہمیشہ استعمال ہوتے رہیں اور سارا جلال خداوند صرف اور صرف تیرے نام کے لیے ہو, یسوع کے نام میں آمین. میں بہت خوش ہوا جب پاسٹر جی نے مجھے بولا کہ بھائی کیوں نہ سنڈے کو, کیونکہ میرا پلان تھا اس ویک کو آنے کا اور میں چاہتا تھا کہ ہم جا کے کپونگ جو چرچ ہے وہاں پر دیکھیں کچھ معاملات کو. اور پاسٹر جی نے مجھے بولا کیوں نہ آپ ہمیں سنڈے کو جوائن کریں اور پھر ہمارے ساتھ جو ہے وہ رفاقت کریں اور کلام کی جو ہے وہ سنڈے کو شیئر کریں. تو میں نے پاسٹر جی کو بولا ٹھیک ہے میں حاضر ہوں اور میں ضرور جو ہے سب کے ساتھ جو ہے خدا کے کلام کو شیئر کروں گا. تو خدا نے یہ موقع دیا اور آئے ہم بغیر وقت ضائع کیے ہم اپنے جو ہے آج کے ٹاپک کی طرف چلیں اور متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا 15 باب اور اس کی 21 آیت سے 28 آیت تک ہم خدا کے کلام کو دیکھیں گے. متی کی انجیل میتھیو 15 verse 21 to 28. سو 21 سے 28 آیت کو متی 15 باب میں سے ہم دیکھیں گے اور خدا ان کا زندگی بخش کلام ہمیں اس طرح بتاتا ہے. یہ ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے خدا ان کے زندہ کلام میں سے اور یہ ایک بڑی خوبصورت ایمان کی تصویر ہمیں نظر آتی ہے یہاں پر اور ہم اپنی رہنمائی کے لیے دیکھیں گے. پھر یسوع وہاں سے نکل کر سور اور سیدا کے علاقہ کو روانہ ہوا اور دیکھو ایک کنانی عورت ان سرحدوں سے نکلی اور پکار کر کہنے لگی اے خداوند ابن داؤد مجھ پر رحم کر, ایک بدرو میری بیٹی کو بہت ستاتی ہے. مگر اس نے اسے کچھ جواب نہ دیا اور اس کے شاگردوں نے پاس آ کر اس سے یہ عرض کی کہ اسے رخصت کر دے کیونکہ وہ ہمارے پیچھے چلاتی ہے. اس نے جواب میں کہا کہ میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا. مگر اس نے آ کر اسے سجدہ کیا اور کہا اے خداوند میری مدد کر. اس نے جواب میں کہا کہ لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا اچھا نہیں. اس نے کہا ہاں خداوند, کیونکہ کتے بھی ان ٹکڑوں میں سے کھاتے ہیں جو ان کے مالکوں کی میز سے گرتے ہیں. اس پر یسوع نے جواب میں اس سے کہا اے عورت تیرا ایمان بہت بڑا ہے, جیسا تو چاہتی ہے تیرے لیے ویسا ہی ہو. اور اس کی بیٹی نے اسی گھڑی شفا پائی. ہاللیلویہ. خداوند آج کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اپنی برکت کو بخشے اور خداوند ہم سب کو برکت بخشے جو آج کا کلام سننے کو آئے. ہاللیلویہ. عزیزوں یہ بڑی خوبصورت ایمان کی تصویر یہاں پر ہمیں نظر آتی ہے. یہ کنانی عورت جو اپنی سرحدوں سے نکل کر یسوع کے پاس آئی تاکہ اس سے التجا کر سکے, اس سے ریکویسٹ کر سکے اپنی بیٹی کے لیے جو بدرو گرفتہ ہے. اور یہاں پر
हम देखते हैं कि जब वो आई और जब उसने यीशु से ये कहा, ये रिक्वेस्ट की, तो यीशु ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। और जब यीशु ने उसे कोई जवाब नहीं दिया तो वो शागिर्दों की तरफ गई है, और शागिर्दों ने जब उसका चिल्लाना, उसका रोना करलाना देखा तो उन्होंने यीशु से दरख्वास्त की कि इसको रुखसत कर दे, लेकिन यीशु उसको रुखसत करना नहीं चाहता था। खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर एक बात कहते हैं कि मैं सिर्फ जो है वो इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के लिए आया हूँ। हालेलुया। और मेरे अजीजों, यहाँ पर अगर हम अंजील के और भी मक़दस है जहाँ पर यीशु मसीह कहता है कि मैं सिर्फ इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के, इवन के खुदावंद यीशु मसीह जब शागिर्दों को जो है वो मुनादी के लिए भेजते हैं तो वहाँ पर भी यीशु उनको कहता है कि इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। हालेलुया। और खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें मना किया कि तुम दूसरी कौमों के पास ना जाना, इस्राएल की जो खोई हुई भेड़ें हैं उनके पास जाना। तो यहाँ पर भी खुदावंद यीशु मसीह उसे ये बात कह रहा है। आप हमेशा याद रखें, जब यीशु कोई बात इस तरह की कहता है तो उसमें उसकी हिकमत और मसलहत छुपी होती है। और खुदावंद यीशु मसीह यहाँ इन लोगों को कुछ दिखाना चाहता था। खुदावंद यीशु मसीह हम सबको कुछ दिखाना चाहता था। और क्या हुआ आगे, जब उस औरत ने आकर यीशु मसीह के सामने सिजदा किया और उसे मिन्नत की उसकी कि मेरी मदद कर, क्योंकि उसकी बेटी क्या थी, बदरू गिरफ्ता थी। और क्या हुआ कि उसने उसे जवाब दिया कि लड़कों की रोटी जो है वो कुत्तों को डालना अच्छा नहीं है। हालेलुया। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह जो है वो इस्राएल के घराने की बात कर रहे हैं, और जो मेज जो उनके लिए लगी हुई है, यीशु मसीह नहीं चाहता कि उस रोटी में से ये खाएं। लेकिन क्या हुआ, उस औरत ने अपने ईमान को ऐसे जो है मुतारिफ करवाया खुदावंद को, ऐसे जैसे खुदावंद ने इस बात को कहा तो उसने कहा कि खुदावंद, कुत्ते भी तो मालिक की मेज के टुकड़े खाते हैं जो उस मेज से गिरते हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उसके ईमान को देखकर कहा कि जो तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और खुदा का कलाम कहता है कि उसी वक्त उसकी बेटी अच्छी हो गई। यहाँ पर हमें एक और बड़ी अच्छी बात सीखने को मिलती है कि ये औरत उन सरहदों को, जहाँ पर ये इनके लिए एक बाउंड्री थी, ये अपनी बाउंड्रीज को, अपनी सरहदों को छोड़कर यीशु के पास आ गई है। जैसे आपको एक तस्वीर पतरस की मिलती है कि जब खुदा का खादम करनेलियस उसके पास आना चाहता था, तो वो उसको बुलाना चाहता था अपने पास, जब खुदा ने उसे दिखाया तो इससे पहले कि वो उसको बुलाता, पतरस को जो है वो एक चादर दिखाई गई, और उस चादर में बहुत से जो थे वो जानवर, बहुत सी चीजें थी, और उसने कहा कि हराम चीजें मैं नहीं खाता। लेकिन खुदा ने उसे 2-3 बार वही दिखाया, और खुदा ने कहा कि जिसको मैंने पाक किया है उसको तू नापाक नहीं कर सकता। और जब हम इस चीज को देखते हैं, ये असल में बहुत सारे लोग खाने की तरफ लेकर जाते हैं। असल में ये जो हमें सिखाया गया है, ये असल में खुदावंद यीशु मसीह गैर अक़वाम की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो जो खुदा का खादम जिसे रोया में फरिश्ता ने दिखाया था कि तू पतरस को अपने पास बुला, उसे वो एक गैर कौम था, वो जो यहूदी नहीं था। इसलिए खुदा ने उन्हें कहा कि पतरस को कहा, क्योंकि पतरस की जो मुनादी थी वो सिर्फ यहूदियों में थी, वो यहूदियों का तक महदूद रखता था, अपने आप को इसराइलियों तक महदूद रखता था। लेकिन यहाँ पर हमें एक बड़ी अच्छी तस्वीर मिलती है कि उस औरत ने उन बाउंड्रीज को तोड़ दिया, क्योंकि कनानियों को अगर हम पिछले दौर में देखें तो ये इस्राएल के दुश्मन थे। और इसके अलावा अगर हम एक और चीज देखें तो आप जानते हैं कि इस्राएली दूसरी कौमों के साथ जो है वो कोई तल्लुक रखना नहीं चाहते थे। वो हमेशा उनको नीचा कहने के उनको नीचा समझते थे, या वो वैसे ही खुदा के कलाम की वजह से उनके साथ जो था वो अपना ताल्लुक नहीं रखना चाहते। सामरियों के साथ और कनानियों के साथ और इस तरह के और जो कौमें अदूमी रहते थे वहां पर, इन सब के साथ वो अपना ताल्लुक नहीं रखना चाहते थे। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह हमें एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर दिखाते हैं, और जैसे ही ये औरत यीशु मसीह से कहती है कि जो कुत्ते होते हैं वो भी मालिक की मेज के टुकड़े जो गिरे होते हैं उनमें से खाते हैं। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, यीशु कहता है कि जा, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो जाए। और इस औरत ने यीशु को सिजदा किया,
आप जानते हैं कि बहुत सारे और लोगों ने भी यीशु को सिजदा किया। सबसे पहले मजूसियों को आप देखें, मजूसियों ने, गडरियों ने, इस तरह के बहुत सारे लोग जो उस वक्त थे, उन्होंने यीशु को सिजदा किया और उन्हें अपना बादशाह तस्लीम किया और उनके इख्तियार को माना। और यहाँ पर भी ये औरत असल में यीशु के इख्तियार की वजह से वो जानती है कि यीशु ही वो हस्ती है जो लायक है इसके कि वो किसी को शिफा दे सके, तंदुरुस्ती दे सके और उसको उस बदरू से छुड़ा सके। और आप जानते हैं कि जब यीशु पानी पर चलता हुआ आया और शागिर्द घबरा गए, उन्होंने देखा और उन्होंने यीशु को ना पहचाना। लेकिन यहाँ पर ये औरत सिर्फ सुनने की वजह से, सिर्फ इसने यीशु के मुतल्लिक सुन रखा था, क्योंकि अगर हम खुदा के कलाम में से देखें मरकस की इंजील उसका 3 बाब और उसकी 8 आयत में, तो यहाँ पर हमें मिलता है कि बहुत सारे लोग इन सरहदों से जो अदूम और यरूशलेम और सैदा और सोर के इलाका से निकलकर एक हजूम जो था, जिन्होंने यीशु के बड़े बड़े कामों के मुतल्लिक सुन रखा था, वो यीशु के पास आए। ठीक है, तो जैसे ही ये लोग यीशु के पास आते, यीशु उनको बदरूहों से, बीमारियों से और गुनाहों से छुड़ाता, क्योंकि यीशु की तालीम यही थी। जैसे ही वो किसी को शिफा देता, वो कहता कि फिर से गुनाह ना करना। क्योंकि मेरे अजीजों, जब आप दोबारा गुनाह के जुए में जुट जाते हैं, जब आप शिफा के बाद, सलामती के बाद, तंदुरुस्ती के बाद वापस उसी अपने रास्ते पर चले जाते हैं, तो आपका हाल पहले से भी बुरा हो जाता है। और यहाँ पर ये औरत यीशु मसीह के बादशाह, हकीकी बादशाह होने को जाहिर करती है और उसके सामने सिजदा करती है और उसे कहती है कि खुदावंद मेरी मदद कर। और वो इस सजदे से हम ये भी सीखते हैं कि वो यीशु मसीह के इख्तियार को भी जाहिर करती है, उसकी कुदरत को जो यीशु मसीह के अंदर थी, वो उस कुदरत को भी बयान करती है कि यीशु मसीह इस कुदरत के इख्तियार के लायक है कि वो उसकी बेटी को शिफा दे सके। उसने सिर्फ सुना हुआ था, उसने हो सकता है कुछ मोजज़ात भी देखे हों, लेकिन उसका ईमान इतना पुख्ता था कि उसने यीशु के पास आकर, यीशु ने हालांकि उसको साफ साफ कह दिया, लेकिन उसके बावजूद वो जाना नहीं चाहती थी। उसने यीशु मसीह से फिर दरख्वास्त की और यीशु ने उसकी फरियाद को सुना। हम और भी खुदा के कलाम में से देखते हैं, ज़िब्दी का बेटे, ज़िब्दी की जो बेटों की माँ थी, वो भी यीशु मसीह के सामने सिजदा करती है और यीशु को कहती है कि अपने बेटों के लिए दरख्वास्त करती है कि उनको आसमान की बादशाही में, जब यीशु की बादशाही आए तो वो उनको दाएं और बाएं बिठाए। इसी तरह हमें यायर का जो सरदार था उस वक्त का, वो भी खुदा उनको सिजदा करता है और कहता है कि मेरी बेटी जो मर रही है उसको आके ठीक कर दे। और इसी तरह जो थे वो मजूसियों ने सिजदा किया और जो कोढ़ी थे जो शिफा पाने के लिए यीशु के सामने सिजदा करते, और ये सिजदा जो उसको करते, एक तो यीशु हकीकी बादशाह था और दूसरी जो बात थी वो यीशु मसीह के इख्तियार की वजह से, जो उसको कुदरत उसके अंदर थी, उसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं थी, उसको किसी से मांगने की जरूरत नहीं थी कि खुदावंद इसे शिफा दे। वो इख्तियार से कहता था कि तू चंगा हो जा, तू ठीक हो जा, और उसी वक्त लोग जो थे वो शिफा पा जाते। हालेलुया। ये है हमारा खुदावंद यीशु मसीह। और जब वो अपने इख्तियार से लोगों को कहता और वो शिफा पाते। और मेरे अजीजों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जब यीशु 28 बाब, मत्ती का 28 बाब जो मैथ्यू 28 बाब है, उसमें मैथ्यू 28, उसमें जब यीशु मसीह आसमान पर उठाए जाने वाले होते हैं, तो वहाँ पर शागिर्द भी यीशु मसीह को सिजदा करते हैं। जब यीशु मसीह उनको कहता है, 18 आयत में अगर हम देखें तो वहाँ पर लिखा है कि शागिर्द भी उसे सिजदा करते हैं, और उनमें से बाद जो थे वो उनके अंदर शक था कि वाकई खुदावंद यीशु मसीह जो कह रहा है क्या वाकई ऐसा ही होगा। और आप जानते हैं कि जब लोग दुआ कर रहे थे और 120 की वो जुमायत, तो खुदावंद यीशु मसीह ने जो कहा था वो पूरा हुआ। और आज भी खुदावंद यीशु मसीह जो कह रहा है वो आज भी हमारी जिंदगियों में पूरा होता है। जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें
बिच्छुओं और सांपों पर इख्तियार देता हूँ। आज वैसा ही है, हम दुश्मन की कुदरत पर गालिब आते हैं। हालेलुया। मेरे अजीजों, जिस तरह ये कनानी औरत अपनी हदों से बाहर निकलकर, अपनी सरहदों से निकली, अपनी बाउंड्री से बाहर निकली, आज हमें भी जरूरत है कि हमारे अंदर हमारे जो बाउंड्रीज हैं, हम उनसे निकलकर खुदावंद यीशु मसीह के पास आए ताकि वो हमें आजाद करे। हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम हमें बताता है कि यीशु वो हस्ती है जो हमें हर तरह के गुनाह से, हर तरह की बीमारी से, हर तरह की बदरू से, हर तरह के बंधनों से छुड़ाने की कुदरत रखता है। हालेलुया। और मेरे अजीजों, आज हमारे पास भी बहुत सारी ऐसी सरहदें हैं। अना की सरहद है, खुदगर्जी की है, लालच की है, फरेब की है, धोखे की है, झूठ की है। इस तरह की बहुत सी सरहदें, ना माफ करने की सरहद है, और ऐसी बहुत सी सरहदें हमारी जिंदगी में हैं। खुदा उनके कलाम में से हम देखेंगे अपनी रहनुमाई के लिए याकूब उसका 4 बाब और उसकी 10 आयत में खुदा का कलाम कहता है कि खुदावन के सामने फरोतनी करो, वो तुम्हें सर बुलंद करेगा। और मेरे अजीजों, अगर हमारे अंदर अना है तो कैसे हम फरोतन हो सकते हैं? हालेलुया। इसलिए हमें अपनी उस अना से, अपने उस प्राइड से निकलने की जरूरत है ताकि खुदा हमें सरफराज करे। अगर हम अपनी जिंदगी को वैसा, हम आमतौर पर कहते हैं कि हम यीशु पर ईमान रखते हैं, यीशु हमारा निजात दहिंदा है, लेकिन मेरे अजीजों, खुदा का कलाम कहता है कि ईमान बगैर अमाल के मुर्दा है। अगर सिर्फ हम कहते रहेंगे और उस पर अमल नहीं करेंगे तो कैसे मुमकिन है कि आप सरफराज किए जाएं? कैसे मुमकिन है कि आप गुनाहों से, बंधनों से और उन लानतों से आजाद किए जाएं? इसके लिए सबसे पहले हमें इन सारी जो हमारे अंदर कदूरतें हैं, हमारे अंदर सारी जो खामियां हैं, हमें इन्हें निकालने की जरूरत है। हमें इन सरहदों से, इन बाउंड्रीज से निकलने की जरूरत है। खुदगर्जी के लिए खुदा का कलाम कहता है याकूब ही की पत्री में, याकूब के खत में 3 बाब और उसकी 16 आयत में लिखा है, इसलिए जहां हसद है और तफरके होते हैं, वहां फसाद और हर तरह का बुरा काम होता है। मेरे अजीजों, जब हमारे अंदर जो है वो तफरके और हमारे अंदर जो है वो हसद होता है तो क्या होता है? वहां पर हर तरह का बुरा काम अंजाम पाता है, क्योंकि खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि हर बुरी बात जो है वो मुंह से निकलती है। यहाँ पर यीशु मसीह हमें इस कलाम में ये भी सिखाते हैं, जब हम इस औरत के अहवाल को देखते हैं तो जो यहूदी थे वो कनानियों को या दूसरी कौमों को अनकलीन या उनको जो थे वो गुनाहगार समझते थे, उनको घिनौना समझते थे। इसी वजह से वो उनसे कोई ताल्लुक रखना नहीं चाहते थे। तो मेरे चीजों, यहाँ पर यीशु मसीह हमें जो है वो क्लीन और अनक्लीन के मुतालिक भी बताता है। यहाँ पर हम ये भी सीख सकते हैं कि जैसे ही वो कनानी औरत अपने अंदर से उस अच्छी चीज को निकालती है, उस अच्छे ईमान को निकालती है, तो वो ईमान जो है उसके लिए, उसकी बेटी के लिए शिफा का सबब बनता है। हालेलुया। आज हमें भी जरूरत है अपनी इन बाउंड्रीज को तोड़ने की, क्योंकि जब तक हम इन बंधनों से आजाद नहीं होंगे खुदा हमें सरफराज नहीं करेगा। हालेलुया। क्योंकि खुदा जब हम गुनाह पर गुनाह करते हैं तो वो क्या करता है? अपना मुंह हमसे फेर लेता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदावन की कलाम में से अपनी रहनुमाई के लिए देखें फिलिपियों 2 बाब और उसकी 4 आयत। यहाँ पर लिखा है, हर एक अपने ही अहवाल पर नहीं बल्कि हर एक दूसरों के अहवाल पर भी नजर करे। मेरे अजीजों, हमें यक दिल होना है, हमें एक दूसरे की फिक्र करनी है, हमें एक दूसरे के लिए दुआ करनी है, ना कि हसद। मैंने अच्छा मोबाइल ले लिया है तो दूसरा जो है वो हसद करे, या उसने अच्छा मोबाइल ले लिया है तो मैं हसद करूं, उसने अच्छी गाड़ी ले ली है तो मैं हसद करना शुरू कर दूं। इसी तरह मेरे अजीजों, हमारे अंदर
जो है वो बहुत सारी चीज़ें जन्म लेती हैं, और जैसे ही ये चीज़ें हमारे अंदर जन्म लेती हैं, ये बुरे कामों को तक़वियत देती हैं। सो इसलिए हमें इन सारी चीज़ों से निकलने की ज़रूरत होती है, और जब तक हम इन चीज़ों से निकलेंगे नहीं, हम इस औरत की तरह शिफा नहीं पा सकते। हमारी ज़िंदगी वैसे ही रहेगी जैसी हम आम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बेशक हम मुंह से तो कहते रहें यस्सु यस्सु यस्सु, लेकिन क्या होगा? कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि कहने से कुछ नहीं होगा जब तक आप उस चीज़ पर अमल ना करें। क्योंकि अबलीस भी खुदा के कलाम को बड़े अच्छे तरीके से जानता है। वो भी ये ईमान रखता है कि यीशु मसीह कादिर है, यीशु मसीह कुदरत से भरा हुआ है। उसको पता है कि उसका इख्तियार कैसा है, उसको पता है कि वो क्या कुछ कर सकता है। और अगर हम भी यही ईमान रखें और उस पर अमल ना करें, तो क्या हम निजात पा सकते हैं? हरगिज़ नहीं। इसलिए आज मेरे अज़ीज़ों, हमें इन सारी सरहदों से निकलने की ज़रूरत है। हम हसद को छोड़ें, उस अना को छोड़ें, एक दूसरे को माफ़ करना सीखें, एक दूसरे से मोहब्बत करना सीखें, और उस खूबसूरत तस्वीर को, इस खूबसूरत ईमान को जो इस औरत में था, वैसा ही ईमान अपने अंदर लेके आएं, और खुदा यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें, ताकि वो हमें बरकत दे और हमें अपना बेटे बेटियां बना ले। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।